So now let us start. Once again, our topic for today's session is components of online teaching. So what I was saying is, there is a question for all of you. What are the components of physical teaching? What are the components of online teaching? Sorry, what are the components of normal teaching? I mean physical teaching. Yes. Because now we are going to discuss the components of online teaching. So before we come back to our topic, I want to what do you call you somebody to recall what are the components of teaching offline. Yes, can anybody? Classroom, Yes. benches, blackboards, chalkies, students, and teachers. They are the physical elements, Yeah, classroom and all physical elements. No, what I am saying is that classroom teaching, components of classroom teaching. What you said is components of classroom. I mean, whoever are present in the classroom. My lesson question was plans. components of online on physical teaching. Yeah, the subject introduction, reading by the students, and sometimes by the teachers also, and explaining accordingly, and going through all whatever is given in the subject, writing on the board and explaining to them, and Yes. frequently asking the questions on that whatever we are teaching, and whatever we have taught the previous class, asking that questions. Yeah. So that's good. These are the components of physical teaching, or you can call it as real teaching. Yesterday, I hope we have differentiated what is the real teaching and what is the virtual teaching. In real teaching, you have students in front of you, but whereas in virtual setting, you don't have students in front of you. You will have either mobile or laptop or desktop in front of you, and you are connected with the students through internet and all, and they may appear in small windows in the form of their video windows. You can see them through windows, but it cannot be called as a real class. This was the difference we have discussed. So now let us see how the components of teaching online are different from teaching in physical classes. The components are nothing but, you see, pieces. Uh, your 40 minutes time need to be broken or made into parts, and you have to attend those parts in a sequential manner. Sequence is also very important because you cannot change the order. As a teacher in physical setup, you will not ask the questions first because you have not at all given the lesson. So this is how, what I meant to say is there is a sequence to be followed in physical classes. Let us see how different is. So components, rather, as I said just now, are different pieces, and by joining the different pieces together, we can make an online class. So now, after the normal school starts, these online classes have come to stay. We have to make use of this online platform as well. Why we have to make use of this online platform, I will let you know. But we need to have both the models. I mean online and as well as the physical classes. So a combination of both is called as synchronous learning. Though we have to will have to follow the two components, two other components. One is synchronous and asynchronous learning. Physical classroom setup, you will have synchronous learning, and in online class also you will have synchronous learning. When it is happening at the same time, when you are streaming your lecture to the student,
So the difference is here is in online classes, you will have certain advantages over the physical classes that we'll discuss. So what basically I mean to say is, from now onwards, we need to follow a blend of both online and as well as offline teaching, because when the school gets normal working, even there also you have to follow this blended learning. So we need to understand this first very clearly, that online education has come to stay. ऐसा नहीं है कि फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल क्लासरूम एजुकेशन स्टार्ट हो बंद, ऐसा नहीं. It is going to stay. I will discuss why it has come to stay. The one big difference between the online education and the physical education is that while planning the physical classes, you used to plan by keeping the academic calendar before you. And you have to check how many working days are there in each month, and how many working days in all you are going to get, and out of those all working days, then you will calculate each of the lessons, which lesson is bigger and which lesson is smaller, and how many periods you need to cover those lessons and all. In that way, you used to prepare the unit plan. But now, in online education, there is another way of doing. The planning would be somewhat different. You have to find out how many hours you have now. That is the reason I hope recently our teacher, they have done that British English communication course. There they were talking much about the hours rather than the days and periods. They don't talk about number of days, they don't talk about periods and all. They talk about hours. So similarly, the online teacher should also think about it. Instead of saying number of days, instead of saying, the way the power plan used to get ready, now we have to think in terms of number of hours, because hours are very important now. And each hour, each subject, each period, which you have say for 40 minutes, then you have to chunk those 40 minutes into different components. And then one more thing, thus to give the lesson, these 40 minutes would not be enough. So what strategies you have to follow, that will come to know. So basically the components of online teaching is the one that is called live teaching, live lecture. We call it as synchronous lecture or sync lecture. In short, we call it as sync. In mobiles and all, you come across with this term more frequently, sync. So live lecture. In physical class setup, used to give, there also the lecture are used to deliver the lesson, deliver the content. Similarly, in online lesson also, you are delivering the content. And the other thing is, followed by that, now you have an advantage of online classes here. The other component that what I would speak about is the reading material. You can give the reading material, you can send or you can share the reading material to the students in advance. Just like the textbook is given to the students in advance, similarly, the study material of each lesson need to be given as a part, a complete part, that lesson. That study material you can share with the students. Now the question is what the study material is, how it is different from the textbook. In textbook, mostly there is a flow. There will be a flow of contents from starting to the end. And then you have some exercises. These exercises which are given in the reader are more like a symbolic in nature. Just as example, some questions, short questions, and it is different to different subjects. In mathematics, only you will have answers, and in English,
in English, the textbook after the lesson is over, you will have comprehension part, exercises. You call it as exercises. And in science and all, you will have some activities also there in each lesson. Those activities and all there. So similarly, what I am saying is that online education has got an advantage, and you can share the study material to the students in advance. And the question which I have asked is what actually the study material is. I would like to listen from you what actually the study material is, how it is different from the textbook, and do you think that the study material should be provided to the student? And if the study material to be provided to the student, should it be provided in advance, or it should be provided when it is over, or it should be broken down? I mean, even in a single lesson, break it into different parts and then give. What actually we mean by the study material? Should it be given, as an essential component of teaching, or it should be dropped? There is no need. What do you think? Sir, studying material, it will be better if we share with the students before we teach them. Because generally what we do, we make the students to read the lesson so that they can understand by themselves the words. And particularly when we come to the matter of English, it's very important for the students to learn by themselves. And they will know how to pronounce the words and what is the word, which grammar part it belongs to. Because many times it happens that the word they don't understand, but when we take that same word into the present form of the verb, it will be easy for them to understand. So Yeah. first, if we provide them the material, they can read it. And while providing that, we ask, even in the physical classes also, I used to do this with the students. I used to ask them to underline the hard words which they don't understand. It may be a word, a sentence, or a complete paragraph. In this manner, they will improve their reading and their understanding method. They That's good. understand. That's good. In other subjects, you were talking about the English subject. I would like to listen Yes, from sir. other subject. That's good. I would like to Okay, listen from other subject teacher also. One more. okay, okay. Yeah, that's good. Should the study material be provided in advance? And what is the advantage if it is given in advance to the student? Actually, whether it is a normal class or online class, the students are expected to go through the content first and then come, but it doesn't happen with all students. Those who are extraordinary students with good grades and all, only such type of students, mostly they come prepared. Prepared, not exactly prepared, but they go through once they brush, they apply a broad brush. And the teacher applies fine brush. So they go through the content and they get an understanding in this lesson what they are going to learn and all. So it is there in the text as well. But how it is different, how the study material should be different. In study material, apart from synopsis, there will be different questions and sometimes answer also. Question and answers, and as well as exhaustive in nature. They'll give more number of questions. Short questions, very short questions, long questions, and MCQ part. Mostly in readers, the MCQ questions are given symbolically. They don't give much. Many questions, MCQ questions, but in study material. So now, what I mean to say is that the study material should give an overview of how the questions would be. There is a term, there is a saying in education that not only in education but any activity you do, keep the end in mind first. अभी हम बैसत मुसलमान, हर किसी भी मुसलमान का अक़ीदा ये होता है कि वो आखिरत को सामने रख के अपनी जिंदगी गुजारता है. एंड है, सब इंसानों का जो एंड है, हर आदमी ये दुआ करता है कि हमारा खातिमा बिल खैर करे अल्लाह, ये दुआ करते हैं अक्सर.
खातिमा, एंड। इसीलिए एजुकेशन में भी स्टूडेंट्स को भी क्या करना चाहिए, इफ दे कीप द एंड इन देयर माइंड फर्स्ट, उनकी लर्निंग का और टीचर का काम आसान हो जाता है। द जॉब ऑफ टीचर बिकम्स इजी, ये काम इजी होता है। सो द एडवांटेज ऑफ ऑनलाइन लर्निंग इज दैट यू कैन शेयर दिस, आप पीडीएफ की शक्ल में, अभी आई होप यू हैव सीन इन न्यूज़पेपर, द बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन हैज डिसाइडेड टू सेंड द स्टूडेंट्स to their contact numbers or whatever way they would give in advance, या कॉलेज के इसमें रख दिया जाएगा, जो बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट का जो वेबसाइट है, वो वेबसाइट में द पीडीएफ्स विल बी केप्ट इन एडवांस, वो पीडीएफ रख दिए जाएंगे। द स्टूडेंट्स कैन डाउनलोड द पीडीएफ और कॉलेजेस आल्सो कैन डाउनलोड द पीडीएफ फ्रॉम द बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट वेबसाइट ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट। वो पीडीएफ डाउनलोड करेंगे, टेक्स्ट तो है ही है बाजार में। तो लास्ट ईयर बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट फेल्ट दैट नाउ इन ऑनलाइन एजुकेशन, वैसे तो पहले से ही ऑफलाइन एजुकेशन में भी स्टडी मटेरियल दिया जा रहा था, यानी प्राइवेटली वो अवेलेबल था, सेल हो रहा था। इसीलिए प्राइवेट जो कॉलेजेस है, पर्टिकुलरली कॉर्पोरेट कॉलेजेस, एट द टाइम ऑफ एडमिशन इटसेल्फ दे गिव द स्टूडेंट द स्टडी मटेरियल आल्सो, दे चार्ज फॉर स्टडी मटेरियल एंड दे गिव स्टडी मटेरियल इन द फिजिकल फॉर्म एंड दे चार्ज फॉर दैट। बल्कि बाज़ औक़ात में तो एग्जॉर्बिटेंट चार्ज भी करते हैं उसको, उसके कई गुना ज़्यादा, उसके बाद कीमत प्रिंटेड नहीं होती, और कॉलेज वाले दे गेट प्रिंटेड इन देयर नेम, और वो बच्चों को दे देते स्टडी मटेरियल के नाम से। और देखिए बच्चे जो है रीडर्स, आजकल बच्चे, मैंने समझता कि एवरी स्टूडेंट इज गोइंग थ्रू द रीडर। हो सकता है कि मैथ्स में जाते होंगे, इसीलिए बच्चे बैग में रोजाना मैथ्स की रीडर विदाउट फेल लेके जाते हैं, और टीचर्स भी बहुत ज्यादा चेक करते हैं कि वेदर द स्टूडेंट इज कैरिंग द मैथ्स रीडर और नॉट। दूसरे रीडर्स की परवाह नहीं करते कि भाई बच्चा कैरी कर रहा है नहीं कर रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि जो स्टूडेंट है वो रीडर को उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता। दिस इज व्हाट आई मीन टू से, अपार्ट फ्रॉम मैथमेटिक्स। इसीलिए मैथमेटिक्स में कोई स्टडी मटेरियल आमतौर पर देते नहीं। अलबत्ता इट इज गुड इफ एमसीक्यू क्वेश्चंस और इस तरह के क्वेश्चंस, क्वेश्चन बैंक अगर बच्चों को प्रोवाइड कर दिया जाए। सो नाउ इन आवर मॉडल, अभी हमारा जो मॉडल हम फॉलो करेंगे, आई वुड रिक्वेस्ट द टीचर्स, बाजार में जो भी स्टडी मटेरियल अवेलेबल होगा उसमें आपको सिलेक्शन करना होगा विच एवर मटेरियल। अब क्या है कि वो जो स्टडी मटेरियल है बहुत एग्जॉस्टिव नेचर होता है। बच्चे बाज़ वक्त में उतना लंबा स्टडी मटेरियल देख के वो डर जाते हैं, अरे इतना याद करना है, इतने क्वेश्चन याद करना है। तो उसके लिए व्हाट यू कैन डू इज दैट आप मार्किंग कर सकते हो। आपको द स्टडी मटेरियल जो मार्केट में अच्छा है वो प्रोवाइड करेंगे। अगर आपको स्टडी मटेरियल बनाना है तो फिर अलग से एक अपना काम है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आपको स्टडी मटेरियल जो मार्केट में अवेलेबल है वो विल प्रोवाइड दैट मटेरियल टू यू। आपको उसको मार्किंग करना पड़ेगा। जस्ट लाइक बिफोर एग्जामिनेशन आप बच्चों को बोलते हैं कि दिस आर इम्पोर्टेंट, यू गो थ्रू देम विदाउट फेल। इसीलिए से आप उनको मार्किंग करना पड़ेगा। वो मार्क किया हुआ हम क्या करेंगे, एक एक लेसन का पीडीएफ या ऑफिस वाले बनाएंगे। विल नॉट आस्क यू टू डू। ऑफिस में हम क्या करेंगे, उसका पीडीएफ बना के आपको प्रोवाइड करेंगे, हेल्प करेंगे, असिस्टेंटशिप करेंगे। अब वो जो पीडीएफ है वो आप जो है ऐप में शेयर करना है एज ए फैकल्टी। यू विल बी एडेड इनटू द ऐप एंड दैट मटेरियल विल बी शेयर। तो मटेरियल जो है अपार्ट फ्रॉम गिविंग द लेक्चर, ये ऑनलाइन में एडवांटेज ये है कि यू कैन फॉरवर्ड, यू कैन शेयर द स्टडी मटेरियल वट एवर मे बी द फॉर्म। पीडीएफ फॉर्म तो बहुत आसान है, तो पीडीएफ फॉर्म विल बी शेयर टू द स्टूडेंट्स इन एडवांस। नाउ द थर्ड कंपोनेंट ये है कि आप जैसे लास्ट टाइम यू हैव प्रिपेयर्ड thousands of videos and you have forwarded to them, but do you think all of them have watched those videos? No, very few have watched, particularly boys. Why they have not watched? इसलिए कि there was no assessment, there was no evaluation directly connected to those videos. That is the reason that students have not watched. अब आपको क्या करना पड़ेगा, after forwarding the स्टडी मटेरियल ऑफ द एंटायर लेसन, आपको स्टूडेंट्स को इन एडवांस कुछ सैंपल क्वेश्चन देना पड़ेगा, सो दैट द स्टूडेंट गो थ्रू दैट स्टडी मटेरियल। वो स्टडी मटेरियल को देखें और दे शुड कम प्रिपेयर। असाइनमेंट जो होता है, सिलेबस पढ़ाने के बाद का भी असाइनमेंट होता है, सिलेबस से पहले यानी लेसन से पहले का भी असाइनमेंट होता है।
So unless you connect the study material which you are forwarding to the students in advance with certain questions, वो बच्चे स्टडी मटेरियल को पढ़ेंगे नहीं, देखेंगे भी नहीं। दूसरी चीज व्हाट यू कैन डू इज अपार्ट फ्रॉम सेंडिंग द, बाज़ वक्त में आप बोलेंगे कि द टीचर हैज नॉट एट ऑल गिवन द lesson, how the students will go through the content and get ready with the answers to those questions. Yes, that is a good question. So for that, टीचर को और एक काम ये कर सकते हैं, बल्कि करना चाहिए, वो है फॉरवर्डिंग द वीडियोस। टीचर जो है बच्चों को ऐप के जरिए से हम क्या करेंगे, उनको जो वीडियोस है लास्ट ईयर जो हम प्रिपेयर करे हैं, या अब जो है, या अब हम प्रिपेयर करेंगे या सेलेक्ट करेंगे यूट्यूब वगैरह से, वो वीडियोस जो है बच्चों को शेयर करेंगे। सो नाउ द स्टूडेंट्स विल हैव द एडवांटेज ऑफ सीइंग द वीडियोस इन एडवांस एंड एज वेल एज दे हैव गॉट द स्टडी मटेरियल, और उसमें से कुछ क्वेश्चंस करेंगे नहीं करेंगे। जिस तरह से चार पाए वाले जानवर करते हैं, जब भी दे स्टार्ट ग्रेजिंग द लैंड्स, वो मोटा मोटा कट करके निकल जाते हैं। उसके बाद में क्या करते हैं वो लोग, आफ्टर सम टाइम व्हेन दे गेट फ्री, जब उनका पेट भर जाता है तो दे विल फाइंड सम स्पेस और आराम से बैठ जाते हैं, जब वो जुगाल करते हैं। उसको बायोलॉजिकल में, साइंस में क्या कहते हैं जुगाल करने को? देयर इज अ पर्टिकुलर Rumination, sir. व्हाट दैट Rumination. स्पेलिंग? RUMINATION. कैन यू टाइप इन द चैट बॉक्स? Yes, sir. यस, आप चैट में कर दीजिए, उसको टाइप कर दीजिए। यस, रूमिनेशन। यस, देखिए बाज़ वक्त में क्या होता है कि बाज़ वक्त में हमारा प्रोनाउंसिएशन बाज़ वक्त में क्लैरिटी नहीं आती, तो ये चैट बॉक्स कितना इंपॉर्टेंट टूल है देखिए। तो चैट बॉक्स में आप लिख दे, उसको रूमिनेशन बोलते हैं, जुगाल करना। अब जो हमारे जो लेसन रहेगा, जब टीचर आएंगे तो उसको क्या करेंगे, उनको फाइन ब्रश अप्लाई करेंगे। विल आस्क द स्टूडेंट्स टू अप्लाई द ब्रॉड ब्रश, द टीचर विल। तो ये जो इसको कहते हैं, ये जो टीचिंग मॉडल है, पहले फिजिकल क्लासेस में क्या होता था कि द टीचर यूज्ड टू डू एवरीथिंग ऑन हर ओन और ऑन हिज ओन। सब पूरा जिम्मेदारी बार जो है कांधों पर टीचर के, पूरा का पूरा बोझ, 100% बोझ टीचर के कांधों पर था। द अदर थिंग इज, हमारा जो सिलेबस है इतना वास्ट है, इतना ज्यादा वास्ट है कि अब 220 डेज में भी वो सिलेबस नहीं पढ़ा सकते। अगर टीचर का माइंडसेट ये है कि इसको A to Z ऑफ द लेसन, A to Z ऑफ द सिलेबस पढ़ाना है, तो वैसा डिजाइन ही नहीं किया गया है पढ़ाना। तो नाउ यू हैव एन ऑनलाइन कंपोनेंट्स ऑफ एजुकेशन की हम बात कर रहे हैं, तो यू हैव नाउ एन एडवांटेज, यू कैन फॉरवर्ड द वीडियो, यू कैन फॉरवर्ड द, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऐप के बगैर आप नहीं कर सकते, जो हमारे पास लास्ट टाइम नहीं था। जो ऐप बेस्ड, ऐप का इस्तेमाल, ऐप का मतलब टेक्नोलॉजी, आप टेक्नोलॉजी यूज करके जब आप पढ़ाते हैं तो ये सब आपको उसका एडवांटेज मिलता है। दैट्स व्हाई आई सेड इन द बिगिनिंग ऑफ टुडे सेशन कि अब जो है हमारा जो मॉडल रहेगा वो ब्लेंडेड मॉडल रहेगा, यानी मिक्स ऑफ बोथ, सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस भी रहेगा। आप अगर कोई वीडियो इन एडवांस में इफ यू आर शेयरिंग विद द स्टूडेंट, दैट इज एन एसिंक्रोनस मॉडल। यू आर गिविंग ए लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं तो दैट इज अ सिंक्रोनस मॉडल। तो इट विल हैव ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। तो अभी हमारे जो कंपोनेंट्स हम डिस्कस करें वो ये करें कि आपका लाइव लेसन तो होगा ही होगा। दूसरा कंपोनेंट ये होगा कि यू विल फॉरवर्ड द वीडियो, आप अपना या किसी का भी वीडियो जो रिलेटेड टू योर लेसन है वो आप एडवांस में टीचर बच्चों को सेंड करेंगे, फॉरवर्ड करेंगे। तीसरा कंपोनेंट ये होगा कि यू विल फॉरवर्ड द स्टडी मटेरियल आल्सो टू द स्टूडेंट, आप स्टडी मटेरियल भी करेंगे। अब सवाल ये है कि आप क्लास में क्या करेंगे दिन? क्लास का ज्यादातर हिस्सा जो है डिस्कशन होना चाहिए, डिस्कशन मुबाहिसा होना चाहिए, स्टूडेंट और टीचर के दरमियान में डिस्कशन होना चाहिए। सी, अब आप बोलेंगे कि नाउ वी आर इन ऑनलाइन क्लास, हाउ इट इज पॉसिबल टू डिस्कस विद ऑल स्टूडेंट्स। तो अभी देखिए, द वे आई हैव आस्क्ड क्वेश्चन, तो नसीम टीचर ने आपकी तरफ से बढ़ के पहले पहल करके उन्होंने जवाब दिया। इसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव, नुमाइंदगी करना, पूरे स्टूडेंट्स की तरफ से नुमाइंदगी करना, कि सब टीचर्स की तरफ से नुमाइंदगी करना। अगर एक टीचर भी आगे बढ़कर पहल कर अगर टीचर का जवाब दे दे तो बाकी सब टीचर्स समझेंगे कि हमने गोया जवाब दे दिया। जैसे
किरात पढ़ना है, बाकी लोगों को पीछे पढ़ना नहीं है, खाली सुनना है। तो इसी तरह से एक आगे जो बढ़ जाता है, बच्चों में भी इस तरह के होते हैं, दे कम फॉरवर्ड एंड दे गिव आंसर। तो तब क्या होता है कि आप ऑनलाइन क्लास में भी अगर एक 2-3 बच्चे भी आप जिनको पिकअप करेंगे या स्टूडेंट्स रेस करेंगे, तो that will become a representative response of the students. फर्ज किफाया, जैसे नमाज जनाजा है फर्ज किफाया, 5 नमाजें हैं फर्ज आइन है। तो महल्ले में अगर कोई भी लोग जाके आगे बढ़ के नमाज जनाजा पढ़ा दिए तो पूरा महल्ले वालों से वो जो फरीजा है साकित हो जाता है। तो इसी तरह से क्लासरूम फिजिकल हो या ऑनलाइन हो, अगर एक 2-3 बच्चे भी स्टूडेंट भी पहल करके अगर जवाब दे रहे हैं तो टीचर ये समझना चाहिए कि ये उसके अलावा चैट बॉक्स में बहुत सारे ऑप्शन है। एवरी स्टूडेंट कैन रिप्लाई, हर स्टूडेंट क्वेश्चन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं। तो अभी हम जो बात कर रहे थे कि देन व्हाट मोस्टली द टीचर वुड डू इन द क्लास, वो है डिस्कशन। डिस्कशन किस पे करेंगे? डिस्कशन करेंगे कॉन्सेप्ट्स पर। कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं वो की टेकअवेज जो होते हैं लेसन में, की टेकअवेज, वो की टेकअवेज पे, इसलिए कि अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाली बात नहीं है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स वाली बात है। जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो टीचर को पता होता है कि विदाउट लर्निंग दोस कॉन्सेप्ट्स द लर्निंग विल नॉट बी कंसिडर्ड एज ए लर्निंग एट ऑल। तो उसके लिए आपका जो क्लासरूम का जो टाइम है दैट शुड बी स्पेंड मोस्टली डिस्कशन। ठीक है, तो अभी जो कंपोनेंट्स करें वो लाइव लेक्चर भी है, रीडिंग मटेरियल फॉरवर्ड करना भी है, स्टूडेंट्स को असाइनमेंट भी देना है, रिकॉर्डेड वीडियो बनाना है। रिकॉर्डेड वीडियो में 2 तरह के, इधर यू कैन क्रिएट योर वीडियो, दबा बोलेंगे कि मेरे पास टाइम कहाँ रहेगा लेसन रिकॉर्ड करने का, नो प्रॉब्लम। आप यूट्यूब पे जाइए और आपके लेसन को सर्च करिए, एक से एक शानदार लेसन दे आर ऑलरेडी देयर ऑन यूट्यूब। There is no need to invent the wheel again. Wheel has already been invented by somebody. So do the next thing. अब वो उसको इंग्लिश में don't need, there is no need to create the data. Already data is there on the YouTube. Only you have to select and use. Select और use करने को ही data curation बोलते हैं, CURATION, डेटा क्यूरेशन। तो डू द डेटा। और एक इम्पॉर्टेंट और 2 कंपोनेंट्स हैं जो हमारे टीचिंग के, वो है असेसमेंट्स। आप लास्ट टाइम हमारा जो सबसे बड़ा जो चैलेंज था, वी वर नॉट एबल टू डू द असाइनमेंट, इसलिए कि हमारे पास ऐसा कोई टूल नहीं था, ऐप नहीं था। तो ऐप नहीं था तो इसलिए हम असेसमेंट जो है फ्रीक्वेंटली बच्चों के साथ नहीं कर सके। इसीलिए बच्चों को, पेरेंट्स को लगा कि लर्निंग हैज नॉट हैपेंड लास्ट ईयर, जैसा होना चाहिए था वैसी लर्निंग नहीं हुई, तो इसीलिए असेसमेंट भी होना चाहिए। असेसमेंट को अभी हम बहुत डिटेल में डिस्कशन करेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में, इसीलिए कि असेसमेंट जो है ऑनलाइन एजुकेशन की जान है, और ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, असेसमेंट के बगैर जो है हमारा जो पढ़ाना है जो अधूरा है, नामुकम्मल है। और एक कंपोनेंट है इवैल्यूएशन। हम जब ये असेसमेंट को डिस्कस करेंगे तो इवैल्यूएशन को भी डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे कि असेसमेंट और इवैल्यूएशन में क्या फ़र्क है। और एक जो है आप ऑनलाइन में और एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, वो है सर्वे। आई होप यू आर टुडे वी आर डूइंग ए लॉट ऑफ सर्विस विद द स्टूडेंट्स एंड स्टाफ। हमने स्टाफ के साथ एक सर्वे किया था, उसका था कि डिवाइसेस का सर्वे किया था। उसमें हमने पता कराया था कि कितने टीचर्स के पास, कितने सेक्शन में दे हैव डिवाइसेस विद देम। सिमिलरली हमने स्टूडेंट्स के साथ भी सर्वे किया। अभी हमने बॉयज हाई स्कूल के लिए वी वांटेड टू हैव द क्लासेस फ्रॉम 7 AM, तो उसमें हमने सर्वे किया। तो यू कैन डू ए लॉट ऑफ सर्वे एंड मोस्टली यू कैन डू एकेडमिक सर्वे। आप एकेडमिक सर्वे किस तरह से कर सकते हैं, विल कम टू डिटेल। अब ये जितने भी कंपोनेंट्स है, ये कंपोनेंट्स को मैनेज करना पड़ेगा। मैनेजिंग ऑल दिस कंपोनेंट, उसको उसी को आजकल एक वर्ड कहा जा रहा है, एक एब्रिविएशन यूज हो रहा है, उसको आप ध्यान दें और नोट कर लें, उसी को LMS कहा जा रहा है। मैनेजिंग ऑल दिस कंपोनेंट्स बाय यूजिंग द टेक्नोलॉजी इज बीइंग रेफर्ड टू एज LMS। तो इसका फुल फॉर्म बताएंगे?
बीच बीच में मैं रुक रहा हूँ, जैसे आरटीसी की बस है, देखिए चलते चलते एक स्टेज पे रुक जाती है पैसेंजर को उतारने के लिए, लेने के लिए. दिस टाइप ऑफ स्टेजेस वी नीड टू हैव इन आवर टीचिंग एज वेल. मोनोटोनस स्पीच के बजाय बीच बीच में स्टेज लेना चाहिए, रुकना चाहिए, पूछना चाहिए. तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि LMS का मतलब क्या है? LMS क्या है? अभी मैंने आपसे जिक्र किया कि मैनेजिंग Learning managing management system. लर्निंग. यस, आप बिल्कुल सही है. हम Learning management system, sir. learning management system. Thumbs up first. You and I mean whoever have said that. तो thumbs up. ये भी देखिए एक तरीका है. इसको बोलते हैं reinforcement बोलते हैं, appreciation. यानी अगर आपको अच्छा काम करते हैं, कोई जॉब देते हैं, तो इस तरह से. So every student feels that as if they have replied. वो हमारे जॉब था जो वो फलां टीचर दिए हैं. We wanted to say the same thing. तो इसीलिए स्टूडेंट्स की पार्टिसिपेशन ऐसे भी हो जाती है. उसके कहते हैं LMS, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम. ये वर्ड आप ध्यान में अच्छी तरह से फिक्स कर लीजिए. ये वर्ड बार बार, ये एब्रीविएशन, ये वर्ड नहीं एब्रीविएशन है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम. बिकॉज अब आप क्या करने जा रहे हैं कि ये पूरे कंपोनेंट्स को टेक्नोलॉजी, राइट नाउ आई एम इन फ्रंट ऑफ यू विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी. अब हमारे पास भी एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, वो जिससे इसी का नाम है ऐप. ऐप क्या करता? वो यही करता, आपके बच्चों की अटेंडेंस लेता. और ऐप क्या करता? वो आपका असेसमेंट लेता, बच्चों का असेसमेंट लेता. और ऐप क्या करता? स्टडी मटेरियल को बच्चों तक पहुंचाता. जब बच्चे जो असेसमेंट करेंगे वो आप तक पहुंचाता है. ये मैनेज करने के लिए जो सिस्टम यूज होता है उसको कहते हैं लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, LMS. तो हमारे पास भी लास्ट ईयर LMS नहीं था, अब हमारे पास LMS है. अब आप बोलेंगे अगर हमारे पास LMS है तो देन व्हाई वी आर यूजिंग दिस प्लेटफॉर्म. हम ये गूगल से क्यों हम लेसन कर रहे हैं, और व्हाई वी वांट टू मेक यूज ऑफ गूगल. अभी ये जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम भी है वो दे आर इन इवोल्यूशन. वो इवोल्यूशन में है अभी. हमारी जो ऑनलाइन एजुकेशन भी है वो गेटिंग इवॉल्व. इन्वेंटेड, डिस्कवरी और इवोल्यूशन में फर्क समझते हैं ना. इन्वेंटेड का मतलब ये कि देयर वाज नथिंग, पहले कोई मोबाइल नहीं था, अब मोबाइल आ गया, तो उसे हम कहते हैं वो इन्वेंशन है. डिस्कवरी क्या है? देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स ऑफ डिस्कवरी. अगर जमीन में कहीं पर पेट्रोल निकल गया है तो उसको इन्वेंशन है, डिस्कवरी. इसी तरह से इवोल्यूशन क्या है? इवोल्यूशन का मतलब है कि स्लोली चेंज आता है, आहिस्ता आहिस्ता चेंज. फॉर एग्जाम्पल वॉचेस. वॉचेस जब पहले आए थे तो महात्मा गांधी की वॉच कहाँ होती थी? उनके कमर में लगी हुई होती. उस जमाने में लोग कमर में या शेरवानी में इस तरह से वॉच होती. फिर बाद में रिस्ट वॉच है. अब वॉच किस तरह की आ रही है? पहले ऑटोमेटिक वॉचेस, इसके बाद में सेल के आए. अब जो वॉचेस आ रहे हैं किस तरह की वॉचेस है? यस, व्हाट टाइप ऑफ वॉचेस आर पॉपुलर दिस डेज नाउ? फोन से, सेल फोन. Pardon? सेल फोन. सेल फोन. यस, वॉच. सेल फोन तो वो सबकी खबर बना हुआ है, सबकी खबर खोज रहा है, ऑल इन वन हो गया. वो कैमरा का खास कर दिया, रिकॉर्डिंग क्या बोलते थे वो पहले क्या होता था वो जो रिकॉर्ड कैसेट प्लेयर, वीडियो कैसेट प्लेयर, VCP, VCR, सबको खत्म कर देगा. ऑल इन वन, उसका खातिल बना हुआ है, ऑल इन वन बना हुआ है. नो व्हाट दिस डेज आई मीन वॉचेस जो है स्मार्ट वॉचेस जो है ना, स्मार्ट वॉचेस. अभी इस वक्त मैं भी यूज करता हूँ स्मार्ट वॉच. Yes, sir. Touch screen. यस, टच स्क्रीन. यस, वो उसके Yes, स्क्रीन sir. को भी आप टच करके टच स्क्रीन Yes. वॉचेस जिस तरह से And मोबाइल स्क्रीन. सो दिस इज कॉल्ड इवोल्यूशन ऑफ वॉच. वॉच जो है कहाँ से शुरू हुई और कहाँ तक आई, आने वाले दिनों में पता नहीं और वॉच कैसे कैसे होगी, क्या है. दिस इज कॉल्ड इवोल्यूशन, यानी स्लोली इवॉल्व हो रहा है. तो ये ऑनलाइन एजुकेशन भी वैसे तो बहुत बरसों से है, लेकिन लास्ट ईयर से इसका इवोल्यूशन थोड़ा सा फास्ट हो गया है. और लास्ट कंपेयर टू लास्ट ईयर अभी बहुत सारे ऐप्स आ गए, बहुत सारे LMS मॉडल्स आ गए, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम आ गए. ये ग्रो. अब हमारा जो LMS है यानी क्लास ऐप, ऐसे भी इंटरप्शंस आते रहेंगे आपको.
आपको बोलना पड़ेगा प्लीज स्विच ऑफ योर माइक। मैं आपका माइक इसलिए स्विच ऑफ नहीं किया कि यू आर नॉट स्टूडेंट्स, यू आर ग्रोन अप। आपका माइक अगर ऑन है तो अभी देखिए आपके नाम के आगे अगर आप चैट बॉक्स में पार्टिसिपेंट तो वो ब्लू अप एंड डाउन हो रहा है, उससे आपको मालूम हो रहा है कि आपका माइक ऑन है। अब किसका माइक ऑन है आपको, अच्छा अभी हमने सबको म्यूट कर दिया है, यू कैन अनम्यूट आल्सो। सो ओके, अभी देखिए थोड़ा सा मैं इधर हमारा जो एलएमएस है वो उसमें बहुत सारे अभी चैलेंजेस हैं, कुछ एडवांटेजेस हैं बिकॉज ऑफ दैट वी हैव परचेज दैट एलएमएस, बट देयर आर चैलेंजेस। तो उसमें एक चैलेंज ये भी है कि ये उसमें लाइव लेसन जो है रिकॉर्ड नहीं होता। I mean, as far as the lesson giving part, इसके लिए हम फिर इसको ये प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं so that your lessons could be recorded. While we are रिकॉर्डिंग जो हम कर रहे हैं वो एक ये कर रहे हैं कि देयर आर चैलेंजेस विद टेक्नोलॉजी। कभी किसी का नेट काम नहीं करता, कभी किसी का फोन काम नहीं करता, कभी कोई बच्चे पर जेन्युइन रीजन वो एब्सेंट हो जाते हैं, नहीं घर में बैठ के भी लेसन में एब्सेंट हो सकते हैं, और भी कुछ ना कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ सकता है कि children having multiple may not be having multiple devices नहीं होंगे। तो ऐसे चैलेंजेस को जो बिकॉज एलएमएस भी 100% सोल्यूशन नहीं है वो ऑफलाइन क्लासेस का, लेकिन वो परसेंटेज ग्रो कर रहा है, ज्यादा से ज्यादा अल्टरनेट बनने की कोशिश कर रहा है। बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं, ऐसा नहीं है कि 100% ये सब कुछ कर रहा है, ठीक है। So I hope you are clear now with LMS। एग्जाम में आपको हो सकता है कि आपके इवैल्यूएशन में एक क्वेश्चन आ जाएगा ये लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है और ये सब चीजें। आई होप यू हैव मेड नोट ऑफ। नाउ विल मूव आउट। वंस अगेन मैं यही बोलूंगा कि टीचर्स को इवन विद LMS मॉडल एंड ऑल डोंट ट्राई टू एक्सप्लेन एवरी बिट ऑफ लेसन ऑन योर ओन। लेसन का पूरा लेसन आप पढ़ाएंगे तो बच्चा डिपेंडेंट बन जाएगा। अगर आप बच्चे को डिपेंडेंट बना रहे हैं तो बच्चे का पूरा काम आप करिए। अगर आप बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाना चाह रहे हैं तो बच्चे को भी कुछ काम दीजिए, बच्चे से भी करवाइए, बच्चे को भी अपॉर्चुनिटी दीजिए, तो फिर वो बच्चा लर्न करेगा। सब काम उसको आप ही कर देंगे तो कैसे वो। अब मुझे एक स्टोरी याद आ रही है अभी मेरी स्टोरी है इसलिए कि स्टोरीज बहुत अच्छा कनेक्शंस, हमने कनेक्शंस में ये पढ़ा था कि कनेक्टिंग विद द ऑडियंस है, स्टोरीज जो है और बहुत पावरफुल होते हैं। मैं आपको एक अपनी पर्सनल स्टोरी आपसे शेयर करूंगा बात समझने के लिए कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, यानी बच्चों को इंडिपेंडेंट क्यों बनाना चाहिए। एजुकेशन का पर्पज ही बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाना है, डिपेंडेंट बनाना नहीं। तो अब हम क्या करते हैं, we teach every bit A to Z। हम पढ़ा देते बच्चों को, हम बोलते कि चलो भाई हम आपका काम कर दिए, अब आपको कुछ भी नहीं करना। इसीलिए बच्चे एग्जामिनेशन में कुछ भी नहीं कर रहे, या फिर वो रट के कर रहे हैं, बगैर समझे कर रहे हैं। क्विज आया एग्जामिनेशन में, क्विज अगर हुआ तो बच्चे आंसर नहीं लिख सकते। ऑल दिस। सो आई जस्ट एक स्टोरी छोटी सी बोलकर मैं आगे बढ़ूंगा कि मैं और मेरा एक कजिन, हमारा चचेरा हुआ, हम उम्र हैं 2-4 दिन छोटे बड़े होंगे। तो हुआ ये कि मेरी जो मतलब परवरिश हुई और हमारे जो चचेरे भाई जो कजिन, उनकी जो परवरिश में बहुत बड़ा फर्क है। माय पेरेंट्स, आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू बी इंडिपेंडेंट एज अर्लियर। बहुत जल्द मैं इंडिपेंडेंट, हमारे वालिदैन ने मुझको इंडिपेंडेंट बनाया। अब हालात भी कोई ऐसे थे कि मैं इंडिपेंडेंट जल्दी इंडिपेंडेंट बन गया। अब हमारे चचेरे भाई क्या है, अब उनकी थोड़ी सी स्टोरी सुनिए कितने डिपेंडेंट बने। क्योंकि घर में सब बड़े दादा दादी वगैरह सब वो उनके साथ रहते थे, और हम जो हमारे वालिद साहब के साथ, हमारे वालिदा के साथ, हम निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट में एक PSC भी हमारे वालिद साहब की, जहाँ पर मेडिकल डिपार्टमेंट में मुलाजिमत थी, हम वहाँ रहते थे। वेयर अवे फ्रॉम, वो कर्नाटक में और हम आंध्र प्रदेश में। तो हमारे कजिन किस तरह से डिपेंडेंट ग्रोथ उनकी होगी, डेवलपमेंट किस तरह से डिपेंडेंट हुई, ये स्टोरी से आप कनेक्शन लगा सकते हैं। बच्चों का जो प्रॉब्लम है, अगर ये हमको बात समझ में आ जाए तो मैं समझता हूँ कि आज का हमारा जो लेसन है वो काफ़ी हद तक आउटकम बेस्ड होगा, इसका नतीजा फैज होगा। तो वो हमारे जो कज़न थे
उनको उनकी पॉटी कराने से लेकर, उनका मुंह धुलाने से लेकर, उनका ब्रश करने से लेकर, उनकी बाथिंग करने तक, he was grown up as dependent person. हम जब भी हॉलीडेज में जाते थे, हमारे कजन को देखते थे कि he was in 7th, तो वो फारिग होकर आगे ठहरता था धुलाने के लिए, और वो अपने आप से नहीं नहा सकता था, उसको हमारे दादी या उनकी अम्मी या कोई जाके उसको नहलाते थे। और आज देखिए इतना डिपेंडेंट है, आज भी टोटली लाइफ पूरी उसकी डिपेंडेंट हो गई, और आज भी 4 लोगों के सामने ठहर के बात नहीं कर सकता हूँ, कुछ लिख नहीं सकता, नो कॉन्फिडेंस एट ऑल, उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस कुछ भी नहीं है। बहुत मैं मतलब अगर मैं स्टोरी बोलूंगा तो काफी लंबी हो जाएगी, एंड दैट इज नॉट द पर्पस। सिर्फ द ओनली थिंग इज आई वांटेड टू कनेक्ट द डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट पर्सन। अभी कह रहे हैं कि बच्चे ग्रेजुएट हो जा रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हो जा रहे हैं, दे कैन नॉट राइट वन सिंगल सेंटेंस, एक सेंटेंस सही नहीं लिख सकते, एक स्ट्रक्चर का सेंटेंस स्ट्रक्चरली ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है। इसलिए कि हमने उनकी डेवलपमेंट, एजुकेशनल डेवलपमेंट हमने डिपेंडेंट की है। उनका पूरा काम हम करते थे, उनको ब्रश हम करते थे, उनको मुंह धुलाते हम थे, उनको नहलाते हम थे। अब वो बच्चा बड़ा हो गया, ग्रेजुएट हो गया, पोस्ट ग्रेजुएट हो गया, उसको जॉब भी मिल गया, लेकिन ही इज नॉट इंडिपेंडेंट। तो इसीलिए ये जो ऑनलाइन लर्निंग मॉडल में एक बड़ी ऑप्शन है कि गिव देम द वीडियोस of your own videos or the videos which you have prepared last year or the videos which are available on YouTube. Share the videos, बच्चों को बोलो पढ़ो, उसके बेस पर काम दो, बच्चों को काम करके आओ, बोलो let them do something on their own maximum। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका सिलेबस, इसीलिए yesterday I hope I told you very clearly, क्वांटिटी लेसन आप कितने पढ़ा रहे हैं वो उससे ज्यादा क्वालिटी ऑफ टीचिंग इज इम्पोर्टेंट। आप कम काम कर रहे हैं, बच्चे से ज्यादा काम करा रहे हैं, तो यू आर ए गुड टीचर। तो ये एक्चुअली टीचर्स का एम्पावरमेंट प्रोग्राम है, जो ट्रेनिंग है हम कर रहे हैं, थोड़ा सा थॉट्स को रिफ्रेश करने के लिए, थोड़ा सा ब्रशिंग करने के लिए अपने आप को। ठीक है, I have a question, sir. डेफिनेटली गो अहेड। Sir, this is all regarding good learners, good students in the classroom. But what about the slow learners? Yes. They are unable to understand until we teach them, explain them bilingual, and until we approach them and until we give them individual attention. So, how about the slow learners going to manage everything? Yes, got the question. So you see, in a recorded video model, when you are sending the students in advance, that has got an advantage. The fast learner, you see, there is an option in the YouTube. If you want to watch that video at a bit faster, you can make it 1.25 multiplied by x. So that will be faster. If suppose students, as you said, there are slow learners, though those who cannot grasp with that normal speed, so they can slow down. So you can explain them how the video can be slowed down and watch. That is for the benefit of slow learner. This is the one thing. The second thing is of, classroom. When you are in a classroom, when you are teaching, bilingual is different. I am okay with the bilingual as long as ये bilingual भी जो होता है ना, वो lower classes से higher classes पे जाने के बाद में फिर वहाँ से उसको independent बनाना है. That may not be happening. Linguistically independent बनाना है ना, because the student has studied through the English medium, तो वो जैसे higher classes में आ जाए तो it should become independent. तो bilingual अगर मैं बोलूँगा कि use the bilingual method of teaching, तो सब टीचर्स क्या करेंगे, इवन 10th क्लास में भी they may start speaking in Urdu only. इसका तर्जुमा करके 10 जैसा दर्स देने वाले अरबी में पढ़ते हैं तो इसका तर्जुमा उर्दू में सुनाते हैं, वैसा तर्जुमा हो जाएगा. टोटल 100% बाइलिंगुअल हो जाएगा. ये बाइलिंगुअल भी क्या करना चाहिए, इसका रेशियो और प्रोपोर्शन जैसा मैथ्स में होता है, टीचर्स बच्चों को रेशियो और प्रोपोर्शन पढ़ाते हैं. तो लोअर क्लासेस में इसका रेशियो बाइलिंगुअल का इन द बिगिनिंग ज्यादा होते 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 एक सर्टेन क्लास में आने के बाद में, जितना आपका अच्छा स्कूल है, जितना आप अच्छे टीचर हैं, उतना जो है आप बच्चों को वहां से आपको लगेगा कि नाउ देयर इज नो नीड टू स्पीक द बाइलिंगुअल लैंग्वेज, ओनली वन लैंग्वेज, यूनिक लैंग्वेज इज एनफ, देन दैट्स गुड. So as far as the bilingual method of teaching, as I said, I am okay
In the lower classes, I am not saying that UKG, LKG, first, second, third, fifth, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं. जो क्लास में भी बच्चे इंग्लिश में टोटली दे आर एबल टू अंडरस्टैंड, वो हमारा मंशा होना चाहिए एज अर्ली एज पॉसिबल. अब जैसे ही नहीं लग रहा है. और एक दूसरी चीज है कि इन ऑर्डर टू एंगेज द स्टूडेंट वेल, आपको लाइफ टाइम एग्जाम्पल देना पड़ेगा. आपको लाइफ टाइम डेली यूज में आने वाले प्रॉवर्ब्स वगैरह बहुत उर्दू में भी होते हैं, कनेक्शन करने के लिए आप बात करते हैं तो इट्स ओके, जिससे आपके बच्चे की कनेक्शन बढ़ती है, उसका अटेंशन बढ़ता है, वो उसके लिए तो इट्स ओके. सो नाउ अब जो स्लो लर्नर्स और फास्ट लर्नर्स, ये पेडागोजी में आएगा. फिर मैं आपको फिर पेडागोजी में बताऊँ मेथड्स ऑफ टीचिंग, यानी हाउ टू अटेंड द नीड्स. मैं थोड़ा सा आपको एक इशारतन जवाब दे दिया हूँ. वो जो है जहाँ तक के वीडियोस का ताल्लुक है. सो नाउ द अदर थिंग इज, एक अप्रीहेंशन है टीचर के पास. अप्रीहेंशन माने खदशा है, उसको डर है. टीचर को ये डर है कि मे बी आई कैन कंप्लीट द सिलेबस विथ ऑल गुडनेस इन फिजिकल क्लासरूम्स, लेकिन वाइल टीचिंग ऑनलाइन हो सकता है कि मैं पूरा सिलेबस नहीं पढ़ा सकती हूँ, या मे बी 40 मिनट्स मेरे लिए शायद काफी नहीं होंगे, इसलिए कि मेरे को ये भी करना है, ये करना है. सो मैं आपको इसका जो स्टडी है वो बताता हूँ. देयर इज ए स्टडी, बल्कि वो स्टडी के बारे में बोलने से पहले हमारे क्लासरूम के, मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है? No, sir. अभी अभी मेरे स्क्रीन पे एक चैट आया कि वॉइस ब्रेकिंग बोल के, तो इसलिए दिस इज ए फीडबैक, इसको हम बोलते हैं फीडबैक. तो बच्चों को बोलना चाहिए कि जब कभी भी आपको टीचर की आवाज या वीडियो कुछ भी आपको अच्छा लगे तो आप यू गिव क्विक फीडबैक. इसी फीडबैक को असेसमेंट कहते हैं. एक्चुअली जो असेसमेंट होता है वो बच्चा टीचर को फीडबैक देता है कि मैंने क्या समझा है या क्या मेरी मुश्किल है, इसी का नाम है असेसमेंट. ये असेसमेंट जो है वो हम समझते हैं कि वो बच्चे का असेसमेंट है, इवैल्यूएशन बच्चे का है, लेकिन असेसमेंट तो आपका है, आपकी टीचिंग का है. द वे यू आर टीचिंग इट, अच्छा कर रहे हैं या कुछ मुश्किल पेश आ रही है, बच्चों को क्विकली अपना फीडबैक देते हैं. तो इसको बल्कि एक अच्छा टीचर ये, अब आप ये ऑनलाइन एजुकेशन में देयर इज अ वेरी गुड प्रोविजन. आप हर बच्चों को बोल सकते हैं कि एट द एंड ऑफ द लेसन गिव फीडबैक टू माय लेक्चर, आज का लेसन मैंने कैसा दिया हूँ, आप फीडबैक दो. बल्कि मैं आज से ही आपसे बोलूंगा कि आज एट द एंड ऑफ द लेसन आई विल नॉट आस्क यू ओवर द कैमरा एंड ऑल. आप खुद क्या करेंगे, आज अपने टीचर को मैंने आज आपको मैं एड्रेस कर रहा हूँ, तो आज के जो सेशन में मेरा एक्सपेक्ट यू टू गिव फीडबैक. आप चैट बॉक्स में फीडबैक दीजिए. फीडबैक में बहुत सारी चीजें, कीवर्ड्स जो आपने सीखे हैं, ये हो सकता है, या आपको मेरी कोई चीज एग्जांपल कोई अच्छा लगा, ये हो सकता है, या मेरी कोई स्टोरी अच्छी लगी जिससे आपको समझ में आया, एनीथिंग, इट कुड बी एनीथिंग. वो फीडबैक अगर आप देंगे तो वो मेरे को उससे फीडबैक देने से पता चल जाएगा आई विल ग्रो. फीडबैक देने से टीचर की ग्रोथ होती है. टीचर अच्छे से अच्छे लेसन प्लान करता है, वो गुड से बेटर होता है, बेटर से बेस्ट होता है, बेस्ट से एक्सीलेंट है, वो अपग्रेडिंग होती है टीचर की. तो मैं कह रहा था कि जो नॉर्मल फिजिकल हम बात कर रहे हैं कि वो टाइमिंग की, यानी वेदर हम जस्टिफाई कर सकेंगे ऑनलाइन एजुकेशन या नहीं कर सकेंगे, इसका जवाब मैं आपको देना चाहता हूँ. फिजिकल क्लासरूम में बच्चों के इंटरेक्शन में वो बच्चे जवाब देने में टाइम लगाते हैं, और फिर ऐसा होता है. इसमें बहुत ये देखा गया है कि ए लॉट ऑफ टाइम क्लास में, अगर आप क्लास को, फिजिकल क्लास को रिकॉर्ड करेंगे तो आपको खुद रिकॉर्डिंग में पता चलेगा कि बहुत सारा जो टाइम है ना, वो क्वाइट टाइम, आप ये फ्रेज नोट कर लीजिए, क्वाइट टाइम, यानी ऐसा वक्त भी आपके फिजिकल क्लासेस में चले जाता है जिसको हम कहते हैं क्वाइट टाइम. क्वाइट टाइम का मतलब यह क्वाइट आवर्स, जिसमें कोई लर्निंग नहीं होती. आप भी खामोश हैं, बच्चे भी खामोश हैं, तो जाहिर है लर्निंग नहीं होगी. कम से कम आप बोल रहे हैं या बच्चे बोल रहे हैं, फीडबैक दे रहे हैं, तो दैट विल गेट इनटू द लर्निंग. लेकिन ये जो क्वाइट टाइम होता है क्लास का, 40 मिनट्स में क्वाइट टाइम होता है, तो जो क्वाइट टाइम जो है लर्निंग. अब ऑनलाइन एजुकेशन में ये जो क्वाइट टाइम है ये ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है. सो एक स्टडी है, वो ये कहती है कि अगर आपको फिजिकल क्लासेस में एक चैप्टर पढ़ाने के लिए 7 डेज लगते, ऑनलाइन पढ़ाने के लिए हो सकता है कि 3 से 4 दिन ही 3 में पढ़ा देता है.
So in this way, provided you use the LMS, आप टेक्नोलॉजी को कितना अच्छा यूज करना सीख गए हैं, ये जो है काउंट करेगा। मैं आपको यहाँ पर और एक वर्ड तो मैं बोल रहा था कि यू कैन सेव द टाइम, जो क्वाइट आवर्स जो होते हैं, क्वाइट टाइम जो होता है क्लास का, फिजिकल क्लासेस का, वो आपका यहाँ पर लर्निंग में कन्वर्ट हो रहा है। सो इन दैट वे वो जो क्वाइट टाइम होता है हर टीचर का अलग अलग होता है, किसी का बहुत ज्यादा होता है, किसी का कम होता है, किसी का एवरेज होता है। और फिर आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल क्लासरूम में नहीं करते, नहीं के बराबर करते या नहीं करते। नाउ यू आर यूजिंग द टेक्नोलॉजी, यू आर फॉरवर्डिंग देम द स्टडी मटेरियल। आप क्लास में नोट लिखते थे, करते थे, वो काफी टाइम चले जाता था, आपके लिखने में काफी टाइम जाता। नाउ यू आर सेविंग टाइम, अब आप पीपीटी बना रहे हैं, पीपीटी शो कर रहे हैं, आपका टाइम जो है वो बच जा रहा है। तो ऐसा बहुत सारा टाइम आपका टीचर का बच जाता है, और वो जो टाइम होता है आपका लर्निंग में कन्वर्ट होता है। इसीलिए आपको उतना टाइम नहीं लगता जितना के टाइम रियल क्लास में लगता है, वर्चुअल क्लास में उतना टाइम नहीं लगता। तो इसीलिए कहा जाता है कि आप जितना अच्छा एलएमएस को यूज, अब एलएमएस को, टेक्नोलॉजी को यूज करने में, एलएमएस का मतलब यह है कि यूजिंग टीचिंग प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, इसी का नाम एलएमएस है। टेक्नोलॉजी का क्लास में आप कर रहे हैं तो एलएमएस नहीं है, यू आर नॉट यूजिंग एनी टेक्नोलॉजी। इसीलिए अब नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, जो ऑनलाइन टीचिंग का एक कंपोनेंट है, वो कंपोनेंट क्या है, बल्कि एक स्किल है, रादर आपका हुनर है। अभी हम बता रहे थे कि जितना अच्छा आप एलएमएस यूज करेंगे उतने अच्छे आप एक टीचर बनेंगे। तो एक वर्ड आप नोट कर लीजिए, की वर्ड है, वो है नेविगेशन। नेविगेशन, आप जितना अच्छा एक्सपर्ट है नेविगेशन के, उतना अच्छी आपकी एलएमएस होने वाली है। लर्निंग मैनेजमेंट को आप उतना अच्छा करने वाले हैं। Sir, please repeat, sir. Your voice was breaking. Please repeat, sir. My voice is breaking for everybody or only to us a teacher? कभी क्या होता है कि किसी का इंटरनेट कनेक्शन अगर होता है तो उनको ब्रेकिंग वॉइस आती है, सबको नहीं। No, sir. It's audible. It's clear, So sir. my voice is not breaking for others. Okay, no problem. I will repeat what I said is, एक अच्छे टीचर ऑनलाइन में बनने के लिए, आप अच्छा एलएमएस को यूज करने के लिए, एक मैंने वर्ड यूज किया है, नेविगेशन। Can anybody say what is navigation while using the mobile phones and all? नेविगेशन क्या होता है? स्मार्टफोन्स में क्या, आपके स्मार्टफोन में नेविगेशन का ऑप्शन है? स्मार्टफोन का मतलब Show to the way. that you move to different apps, sir. yes. Whether navigation. Whoever wants to give the, I mean, participate replying, better you raise your hands. आप थोड़ा सा hand raise करिए, so that ये क्या होता है कि मैं I'm not able to see you all. आप hand raise करेंगे तो सैफ खतीजा। Navigation, the way. Show the way. Yes, सैफ खतीजा टीचर। Yes, what is navigation in smartphone? स्मार्टफोन को उस वक्त तक के स्मार्टफोन नहीं कहा जाएगा जब तक के उसके अंदर नेविगेशन ना हो। Yes. नेविगेशन का वो किबला मालूम करना, किबला किस तरफ है उस तरफ नमाज पढ़ना, वो भी एक पार्ट ऑफ नेविगेशन ही है। तो आई गिव वन एग्जांपल, एक सिंपल एग्जांपल दूंगा नेविगेशन क्या है। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूंगा, विद दैट आई होप। अब फर्स्ट ये कि मैं एक कॉल आया है और एक कॉल में रिसीव किया हूँ, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ, There is a So the moment I started receiving a call, मैं कॉल पे बात कर रहा हूँ, मैंने बोला कि अरे भाई आप जरा मेरे को फला नंबर, तो किसी का फलां साहब का नंबर मेरे को आप शेयर करिए। तो अगर मेरे को नेविगेशन नहीं आता है तो मैं क्या बोलूंगा, ठीक है देखिए मैं पेन निकाल रहा हूँ, पेपर निकाल रहा हूँ, आप जरा बोलिए मेरे को क्या नंबर है। उन्होंने बोलेंगे 68, नहीं क्या बोले आप जरा एक बार बोलिए फिर। अब वो ऐसा चलता रहेगा।
तो देयर आर टू वेज। एक वे तो ये रहेगा कि उसमें आप क्या करेंगे, कॉन्टैक्ट्स में जाएंगे व्हाइल ऑन द कॉल, कॉल पे भी हैं आप, लेकिन क्या कर रहे हैं मालूम है, हर स्मार्टफोन के में 3 नीचे ऑप्शंस होते हैं। ओके, जो 3 ऑप्शंस होते हैं, जो बीच वाला जो ऑप्शन होता है वो हाइड द ऐप, जो आप ऐप यूज कर रहे हैं उसको हाइड करता है, यानी वो क्लोज नहीं करता, वो ऐप को हाइड करता है। लिफ्ट के जो 3 लाइन जो होते हैं ना, लिफ्ट के 3 लाइन जो होते हैं, वो 3 लाइन से आप फिर जो भी डिजायर्ड विंडो है आप उसको फिर दोबारा हासिल कर सकते हैं। और जो राइट में आपके जो होता है वो बैक बटन होता है, यानी आप जो प्रीवियस जो विंडो यूज कर रहे थे उसको आप फिर वापस लाता है। तो अब क्या करेगा वो, जो अगर कोई स्मार्ट है मान लीजिए, तो वो क्या करेगा, वो ठीक है मैं आपको शेयर कर दूंगा। अभी तो आप आजकल बोल भी नहीं रहे, फोन नंबर को बोल नहीं रहे, इसलिए कि फोन नंबर को 4-5 मरतबा बोलना पड़ता है। आप क्या लिखे जरा बोलो, वक्त में 10 डिजिट्स के बजाय 9 डिजिट से लिख लेते, 10 नहीं लिखते, और वो नंबर ही गलत हो जाता, वो नंबर देना नहीं देना एक ही हो जाता। तो इसीलिए तो या तो क्या करेंगे, उसको शेयर कर देंगे, या थोड़ी देर के लिए शेयर नहीं करें तो ठीक है। अब वो भी स्ट्रगलर है, उन्होंने टेक्नोलॉजी को स्ट्रगल कर रहे हैं। चलिए उन्होंने क्या करेंगे, वाइल ऑन फोन क्या करेंगे, वो कॉन्टैक्ट्स में जाएंगे और कॉन्टैक्ट्स में जाके वो सर्च करेंगे, नेम सर्च करके बोलेंगे कि 48134 जो भी नंबर है बोलेंगे। तो अगर मैं स्मार्ट है ना फोन, तो क्या करूंगा मैं, जो है वो जो फोन नंबर नोट करने सेव करने का ऑप्शन है वहां जाऊंगा, और वो नंबर जो है मैं वाइल ऑन कॉल, यानी आप बवक्त वाहिद जो एक से ज्यादा जो काम करते हैं, इसी का नाम है नेविगेशन। तो इन ऑर्डर टू बी ए वेरी गुड टीचर, स्मार्ट टीचर, यानी फोन स्मार्ट है, आप भी स्मार्ट अगर एलएमएस को करके बनाना चाह रहे हैं तो आपको नेविगेशन आना पड़ेगा। नेविगेशन में क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपको आपको आपका स्क्रीन शेयर करना है बच्चों को व्हाइल बीइंग ऑन क्लास। आप क्लास में वीडियो आपकी चालू है, नाउ यू वांट टू शेयर द योर स्क्रीन, आपको स्क्रीन शेयर करना है, या किसी ऐप में से आपका वीडियो निकाल के बताना है, कोई एक वीडियो है जो आपने अपने सिस्टम में मोबाइल में रखा है वो निकाल के बताना है। तो व्हाइल बीइंग ऑन ऐप, जैसा वो सर्कस में क्या करते हैं, साइकिल चलाते हुए करतब करते हैं, बहुत सारे ये उठाते वो उठाते ये फेंकते, बहुत सारी चीजें, फंक्शन, दे डू मल्टी फंक्शंस, एक साथ कई काम जो करने का नाम है नेविगेशन, एक साथ कई काम करने का नाम है नेविगेशन। तो एलएमएस को, टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए टीचर खासतौर से लाइव क्लास में, रियल टाइम क्लास में जितना अच्छा नेविगेट करेंगे वो उतना अच्छा टीचर बनेंगे। यानी बहुत क्विकली आप क्या करेंगे, आपका स्क्रीन शेयर करेंगे, आपका वीडियो शेयर करेंगे, आप पास कोई ग्राफ है, कोई इमेज है, पावर पॉइंट में नहीं है, तभी भी आप उसको शेयर करेंगे। नाउ आई थिंक माय टाइम इज ओवर, सो टुमारो विल कंटिन्यू विद दिस चैप्टर। इस चैप्टर के साथ हम इसको कल भी आगे बढ़ाएंगे, और बढ़ाने से पहले आई होप कल हम सब जो है अपने वीडियोस के साथ जुड़ेंगे। ऑल टीचर्स विल बी गेटिंग रेडी बाय टुमारो। ओके, जिस तरह से आपको एक्चुअल क्लास जिस तरह से लेना है उस तरह का ट्रेनिंग के लिए गेट बैक इनटू दैट मोड। और आज हमने जो डिस्कस किया है, कैन समबडी समराइज अदर देन दोस्त जो आज पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं उनमें से, दिस इज द कंडीशन to recall whatever we have discussed in today's session, some key points. Yes. हमने जो शर्त लगा दी कि those who have not participated, अब क्या करना पड़ेगा मेरे को, आपको थोड़ा सा पुश करने के लिए अब मेरे को किसी का नाम लेना पड़ेगा यहाँ पे, जो अभी तक मैं आस्क इरफत उन्नीसा, यस सर, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। You know what I am asking right now? मेरा सवाल क्या है पता है आपको, या फिर मैं आपसे दोबारा सवाल करूं? No sir, you said थोड़ा आप माइक के करीब हो जाइए। you said
to say about the summary of the session, today's session. Yes, yes. You got. Just go ahead. Yes, you said about LS, performance learning management system, LMS, sorry, Finish. and how to manage the class while you, What is the how to manage the class at a आज का हमारा टॉपिक क्या है? work. What is the topic of today's session? How to manage the class. How to manage the class? ये टॉपिक है हमारा आज का. Components of online teaching. Online class. ऐसा स्कूल में भी होता है ना, क्लास में बच्चे ऐसे कर देते हैं. सवाल एक से करो, जवाब दूसरा दे देता है. Yes, Irfatunnisa. Yes, sir. What is the topic? What was the topic rather? Because it is finished now. आज का क्या टॉपिक था हमारा? Components of online class. Yes. तो आप थोड़े से 2-3 नाम लीजिए, क्या क्या कंपोनेंट्स हैं ऑनलाइन क्लास के? You said about the study materials. You will Yes, provide, study material. Yes. and last we have to discuss about important concepts. And Study material is one component. Other components? other components is आप थोड़ा सा माइक से दूर हो जा रहे हैं, ऐसे ही बच्चों को भी आप बोलना पड़ेगा. assessment and evaluation, and surveying about the student, and giving and taking feedback from them. Yes. So okay, because I have taken much time. Now Sujat is ready. So tomorrow, inshallah, we'll again recall whatever we have discussed in today's session. At least get ready by tomorrow. एक recall करने के लिए कि whatever. So now my assignment to you all, ये जो मेरा assignment है वो ये है कि all of you should get ready with the PowerPoint presentation, not based on my today's lecture, but what I am saying is you prepare your presentation on any lesson. अभी lesson नंबर 1 ही करिए, पहला जो lesson है आपका उसी पे आप PowerPoint आपका slides बनाना शुरू करिए. स्लाइड का मतलब याद रखिए, स्लाइड का मतलब एक सेंटेंस लिखना का नाम स्लाइड नहीं है. आप कितने स्लाइड बनाएंगे, कितने एक सेंटेंस का एक स्लाइड बनाएंगे, तो यू रिक्वायर हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ. तो इसीलिए हर स्लाइड में क्या होना चाहिए, जो कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स है वो होना चाहिए. जो कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो होना. यस अजीजुन्निसा, यू वांट टू से एनीथिंग? We don't Yes, have sir. Yes, readers sir. with us. Sir, yes, sir. We don't have readers with us, sir. So Okay, how this are we is going to? yes, this is a feedback. I came to know that now. अगर आप ऐसा बोलेंगे तो पता चलेगा कि अभी तो what I will suggest seminar teacher is to provide you readers. आपको ये जो आप assignment activity कर रहे हैं उसके लिए मैं बोलूँगा. और स्कूल या अभी जो लॉकडाउन के रिलैक्सेशन आवर्स में आप 8 से 10 बजे तक आइए. और मैं भी सेमिनार टीचर को एक मैसेज कर दूंगा कि जिनको भी रीडर चाहिए वो यहाँ से आके ले सकते हैं. ओके, सो बिफोर क्लोजिंग डाउन टुडेज सेशन, आई वुड लाइक टू गिव क्विक फीडबैक इन चैट बॉक्स. चैट बॉक्स में साइलेंट आपका फीडबैक दीजिए. फीडबैक का मतलब क्या है, यानी इफ एनी कीवर्ड्स व्हिच यू हैव लर्न टुडे, आपकी जो लर्निंग है उसको शेयर करना चाहिए. और कोई चीज़ आपको सेशन की अच्छी लगी या कोई चीज ऐसी थी जिससे कि आपको स्ट्रगल हुआ, जैसा आप आसिया टीचर लिखेंगे योर वॉइस वाज फ्रीक्वेंटली ब्रेकिंग. एक्चुअली इट वाज नॉट माय वॉइस, मे बी बिकॉज ऑफ इंटरनेट कनेक्शन के इश्यूज से. कभी क्या होता है कि द वे आई एम टॉकिंग ये पूरा ऐसा हो गया, कभी थोड़ा सा मॉडिफाई और डिस्टॉर्ट हो गया आएगा साउंड, कभी वीडियो डिस्टॉर्ट होगा, कभी ऑडियो डिस्टॉर्ट होगा. ये बिकॉज ऑफ इश्यूज. ऐसे इश्यूज बच्चों के साथ भी पेश आने वाले हैं. सो नाउ आई एम क्लोजिंग डाउन. So today you have seen the differences between online and offline education. Okay. So I want you to give quick feedback for my today's session. Chat box में.
नेविगेशन अच्छा हो गया। आयशा टीचर, आयशा नूरीन सेज दैट नेविगेशन उन्होंने सिखाया आज। ओके, learn the components of online teaching. Yes, Azizun Narsa teacher says. Bushra teacher says. Saif Fatija teacher. How do you ask to? ये बहुत जो है चार्ट्स मेरे सामने गायब हो जा रहे हैं। ये चार्ट्स को थोड़ा सा आप फुल स्क्रीन में कर सकते हैं। अच्छा, components of online education, navigation, and as is in सब become the term LMS। अच्छा, LMS आपने सीखा है। खदीजा टीचर ये कह रहे हैं कि today we learn about the components of online teaching. We have to prepare first lesson PPT. Okay, independency of students. Yes, yes. Well, yeah. So with this, I close. This is थोड़ा सा कभी आपको वे ऑफ टीचिंग जिस तरह से मैं आपको एड्रेस कर रहा हूँ इस बारे में भी आप फीडबैक दें तो सो दैट आई कैन, ये ऐसा आप एज ए स्टूडेंट्स को भी एज ए टीचर आप बोलना कि द वे आई एम टीचिंग इज इट इफेक्टिव, आपको अच्छा लग रहा है, शुड आई मॉडिफाई या मैं कुछ इसमें और चेंजेस लाऊं। इस तरह से भी आप सवाल अपने स्टूडेंट से करते रहना चाहिए सो दैट यू गेट फीडबैक, आप अकॉर्डिंगली आप चेंज कर सकते हैं। खाना पकाने के दौरान आपको पता चले कि नमक कम है, मिर्च कम है, तो आप ऐड कर ले सकते हैं। दैट इज कॉल्ड असेसमेंट, इसी का नाम है फीडबैक, क्विक फीडबैक का नाम है। सो विद दिस थैंक यू ऑल एंड बी इन लाइन, Shiyat will take it over. Thank you. Thank you, sir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hope it was an informative meeting for you all. So I'm getting back to the PowerPoint presentation as we are running through a very short period of time. Let me switch off your mics. Okay, so I have multiple presentations. Most of the teachers I have seen from the very first time seeing the messages teachers are sending to me. So actually I want to just most of the teachers are using cursive writings and any other font which is, apart from a formal font. So here the formal font is, I'll tell you the name. Calibri. So Calibri is the name of the font which we can use. You can write down Calibri. I will write in the chat box. So this is the font you can use. Calibri, and there is one another. Yes, Calibri Light. These are two fonts which you can use in your PowerPoint presentation so that it could be much better for the students to understand and to read it properly. Because अगर हम कुछ और fonts use करेंगे हम उसको easily read कर ले सकते हैं, क्योंकि जो teachers या फिर management की तरफ अगर laptops या फिर computer में अगर उसको use कर रहे हैं, उसको read कर रहे हैं, it can be readable. बट अगर मोबाइल फोन में अगर बच्चे देख रहे हैं तो दे कैन नॉट रीड इट प्रॉपरली, थोड़े कॉम्प्लिकेशंस उसके अंदर क्रिएट हो जाएंगे, दैट्स ऑल. एंड द प्लेसमेंट ऑफ वीडियोस, जैसे कि बॉर्डर है, बॉर्डर लाइंस इट शुड बी फोकस्ड कंप्लीटली, यानी कि जो ब्राइट कलर्स होंगे वो ब्राइट, हम अगर फॉर एग्जांपल इमेजेस लगा रहे अगर वीडियोस लगा रहे तो बैकग्राउंड का जो कलर है हमारा, जो प्रेजेंटेशन का जो कवर इमेज आती है, जो बैकग्राउंड आता है, उसका कलर लाइट होना चाहिए. तो जो इमेज है, वीडियो है, वो ब्राइट ऊपर दिख करके आएगी, राइट.
तो यहाँ पर टीचर्स जो है कुछ प्रेजेंटेशंस में बना के दिए हुए हैं मोस्ट ऑफ द टीचर्स। बस आप लोग ये चीज का ख्याल रखिए बीच में कि द कलर कॉम्बिनेशंस यू आर यूजिंग ऑन योर बैकग्राउंड। ओके, सो द वेरी फर्स्ट स्लाइड तकरीबन टीचर्स बनाए, फर्स्ट स्लाइड में अपना इंट्रोडक्शन दिए एंड द टीचर्स नीड टू फॉलो द सेम। सब टीचर्स पहली स्लाइड में सिर्फ अपना नेम, द क्लास दे आर टेकिंग, टॉपिक भी नहीं लिखेंगे वो लोग। हाँ, अगर टॉपिक अगर इंक्लूडेड है तो फर्स्ट में टॉपिक लिखेंगे, इंट्रोडक्शन, क्लास, सब्जेक्ट एंड नेम ऑफ द स्कूल। ये सिर्फ ये नेम ऑफ द स्कूल तो हर स्लाइड के ऊपर राइट साइड कॉर्नर पर रहना चाहिए। आई रिपीट इट वंस अगेन, नेम ऑफ द स्कूल और द लोगो, ये दो में से कोई एक चीज हर स्लाइड पर रहना चाहिए। ये मैं आपको पहले नहीं बोला था, नाउ आई एम इंक्लूडिंग वन मोर पॉइंट, आई रिपीटेड थर्ड टाइम, नेम ऑफ द स्कूल और लोगो, ये दो में से कोई एक चीज आपके हर स्लाइड पर रहना चाहिए। रही सवाल आप लोगो कहाँ से ले सकते, तो आप गूगल पर टाइप करिए iqramisionhighschool.com या फिर इकरा मिशन हाई स्कूल, तो वहां डायरेक्टली आप वेबसाइट पर चले जाएंगे। वेबसाइट पर जाने के बाद सबसे टॉप में आपको दिखेगा स्कूल का नेम एंड लोगो। जब उसके ऊपर अगर मोबाइल फोन है लॉन्ग प्रेस करेंगे तो डाउनलोड इमेज का ऑप्शन बताएंगे आपको, या फिर अगर आप कंप्यूटर पीसी यूज कर रहे हो तो आप उसके ऊपर राइट क्लिक करके आप डाउनलोड इमेज कर लीजिए। तो इस तरह से उसको डाउनलोड इमेज कर ले सकते हैं। बस अगर आप लोगो लगाना चाह रहे हो तो लोगो के उतने साइज को क्रॉप करके लगा लीजिए, या फिर स्कूल का नेम यूज करना चाह रहे हैं तो बस आप डायरेक्टली स्कूल का नेम यूज कर लीजिए, या फिर अगर आप टाइप कर लेना चाह रहे हो तो दिस द फॉन्ट इज, आई विल शेयर स्पेलिंग, Mistral, MISTRAL। ये जो चैट बॉक्स में जो थर्ड स्पेलिंग यहाँ पर लिखा है, ये तीनों भी मेंशन कर लीजिए। ये थर्ड जो है इट इज ओनली फॉर द नेम ऑफ स्कूल। ये जो मिस्ट्रल का जो फॉन्ट है हमारा, आप उसके अंदर टाइप करके ये फॉन्ट सेलेक्ट करेंगे तो जो स्कूल का फॉन्ट है वो मिस्ट्रल का आ जाएगा आपको। तो इजीली आप डाउनलोड भी करने की जरूरत नहीं है आपको, आप उसको वैसे डायरेक्टली इमेज लगा ले सकते हैं, फोटो फॉन्ट लगा ले सकते हैं। अगर आपको और क्लियर इमेज चाहिए तो हमारे स्कूल के जो डीपी है ना, और जो व्हाट्सएप ग्रुप की जो डीपी है, आप वहां से भी उसको डाउनलोड कर सकते हैं, प्रोफाइल पिक्चर से भी इमेज डाउनलोड कर ले सकते हैं। तो ये द थिंग इज, आपको हर स्लाइड पर स्कूल का लोगो और स्कूल नेम रहना कंपलसरी है। और द सिलेक्शन ऑफ योर प्रेजेंटेशन शुड बी इन लाइट कलर, द बैकग्राउंड ऑफ योर प्रेजेंटेशन। यहाँ पर एक दो बार ऐसा हुआ टीचर्स के प्रेजेंटेशन में हेडिंग में जाकर इमेजेस मर्ज हो गए। एक्चुअली आई डोंट वांट टू शेयर द इमेजेस, मे बी फ्रॉम कल से मैं इमेजेस शेयर करना स्टार्ट करूंगा। तो यहाँ पर जो इमेज है, जो हेडिंग का जो ऊपर डिफरेंशिएट कलर्स हो जाते, हेडिंग का कलर अलग हो जा रहा और जो नॉर्मल डिस्क्रिप्शन आता उसका कलर अलग हो जाता। तो आप जो इमेज उसको ओवरले करें, उसको प्लेस इस तरह से करें, कभी वो आपके फॉन्ट के ऊपर जो है राइटिंग पार्ट है उसके ऊपर ओवरलैप कर दे रहा है, या फिर हेडिंग के ऊपर ओवरलैप कर दे रहा। So this is the thing happening, and one more presentation. Okay, this is good. Yeah, apart from this, everything is going perfectly, going smooth. But videos में हम खास तौर पे इसी का ख्याल रखेंगे, अगर ज्यादा रेजोल्यूशन की अगर आप वीडियो भी डालना चाह रहे तो यू कैन शो, बिकॉज हम कंप्यूटर से शो करेंगे, वो ना ही कोई मोबाइल फोन से स्क्रीन शेयर करेंगे, तो शेयर हो जाएंगी वीडियो। बस उसको म्यूट कर देना चाहिए, वीडियो में ऑडियो नहीं रहना चाहिए, फिर शायद उसके अलग कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट होंगे। सो आई विल डू वन थिंग, मैं एक पावर पॉइंट में आपके सामने, एक्चुअली इसका ट्रायल मैं भी नहीं किया है, सो लेट्स डू अ ट्रायल। मैं मेरे पावर पॉइंट में एक वीडियो अटैच करूंगा और वीडियो के अंदर ऑडियो भी रहेंगी। आपको मेरे को सुनकर कमेंट सेक्शन के थ्रू ये बोलना है कि वहां पर वीडियो में जो ऑडियो क्वालिटी है आपको बराबर सुनाई दे रही क्या नहीं। सो हियर आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू।
So this is the same video जो कल मैं डाउनलोड किया था. This is the same video. मैं यहाँ पे वीडियो प्ले कर रहा हूँ, बस आपको गौर से सुनना है और ये बोलना है कि ऑडियो बराबर आ रही, आपको सुने या नहीं. प्ले. Our solar system is one of over 500 known solar systems in the entire Milky Way galaxy. The solar system came into being about 1.5 billion years ago when a cloud of interstellar gas that collapsed, resulting in a solar nebula, a small invisible material that combined form the solar system. The solar system is located in the Milky Way's Orion star cluster, only 15% star. तो यहाँ पर आवाज अजीज उन्निसा बेगम टीचर आप बोले कि आवाज बराबर आ रही है. इट्स ऑडिबल, इट्स नॉट क्लियर. ऑडिबल बट नॉट क्लियर. नो सर. ओके, सो ऑडियो इसकी ठीक नहीं है. तो कोई ऑन द माइक इसका फीडबैक दे सकते हैं कि ऑडियो किस तरह से आ रही. एक्चुअली मैं किससे पूछना चाहूंगा, अजीज उन्निसा बेगम. अजीज मैम, आप सुन रहे हैं मेरी आवाज? आपको आवाज बराबर है? Yes, sir. Yes, sir. It was audible, sir. Completely clear? And yes, sir, and it's clear. Okay. Ghazala ma'am? Sir, it's not clear, sir. मतलब Break, इंटरनेट sir. कुछ हो रहा था या? No, sir. Voice break हो रही सर उसमें. Okay, ma'am, Aisha Noreen. It's breaking, sir. Voice is breaking. It's not clear. Okay, ma'am, Saif Saleh teacher. Assalamu alaikum, sir. Walaikum Sir, salam. it is audible. Just the word I remember is galaxy. Everything is not clear. Okay, apart from that, anything is not clear. Yes. Khadija ma'am, No, sir, it's not clear. it's not clear. Okay, Jafar sir, I want to hear from you. It's me, Asiya teacher. Okay, it was audible, but it was almost like a ghost speaking. Excuse me, couldn't hear you properly. Am I clear now? Yeah, you are clear. Please speak. It was audible, but it wasn't with clarity. It was Okay. almost like a ghost speaking, a witch. Okay. So I have received a PowerPoint from Jafar sir. So is this a PowerPoint made by Jafar sir? Yeah, I helped him. Okay, you helped him. Okay. May I know from which platform you have downloaded the images? Through Google only? No, I have used this pin interest. Okay, okay. So, but typing Hindi, so which platform have you used the keyboard or audio recorder? Basically, I haven't recorded anything. There is no audio and video over there. It is made only with the images. Okay, so you have just taken the image and pasted it over there in the PPT. Obviously, in the very first Got you. presentation, it is only written content. And in the second, I have tried pasting the images, and I have seen that after the subtitle, little content is written over there along with the image. And I have tried that the image shouldn't be like, the image should not hide the content. I have tried that. Okay. Okay, so you have cropped in such a way that it's not overlapping on each other. Yes, and would like Why don't you it's try the beginning. exactly? Why don't you try another thing that better type in your keyboard in the language Hindi? Obviously, we have used our keyboard for Hindi, but for the images, I have taken from my gallery. First, I have downloaded the images which I needed. I'm talking about the very first slide, the red one, the red one. यहाँ पर जो हिंदी में कैरेक्टर्स जो है ना मैम, तो ये Okay. image
They are images. No, it is Or you written have typed in it. Hello? characters of images, you are saying. No, I'm not speaking about images. I'm speaking about the characters. Characters, it's in Hindi only. Yes. So this, have you typed this? Yes, obviously, we have typed and we have used that listen to speech option, Okay, 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 speech to written option, something is there. Yeah. okay, okay. Perfectly done, ma'am. If we simply start speaking, it will be automatically written. But the thing is that after writing completely, we need to check the spelling errors. That's it. Okay, perfectly done, ma'am. So just this is the thing. These are some points which I want to tell you all. Tomorrow is Friday and Saturday. I will tell you about Google Meet, how to use Google Meet, what are the do's and don'ts you have to do on Google Meet, the type of securities you have to play, the role you have to play. I mean, you need to be multitasking. So here I would teach you something basics of Google Meet so that you can practice at home. But once you visit a school, once the class have been started, whenever the class is going to start, then I'm going to train you how to operate this system on multiple screens. So simultaneously there will be 2 to 3 screens in front of you. Then you need to just operate simultaneously 2 screens or 3 screens at a time with a single keyboard, with a single mouse. So this is something very technical, but not difficult. So here from tomorrow, inshallah, I'm going to start the pattern of Google Meet. So I hope you have learned something, and through the feedbacks and all, inshallah, from tomorrow we are going to start Google Meet from tomorrow and day after tomorrow. So any other questions before winding up? So I hope there are no questions. Everything is clear. So Jazakallah khair for your presence. Inshallah, we'll meet tomorrow on the same time, 2 o'clock. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum assalam.